grateful for your constant support. Thank you so much, sir. Thank you. Now, I would like to welcome Dr. Piyush Kanti Khatua, who has served Haldia Institute of Technology for long 13 years. Again, please lend me 2 minutes to introduce him. Professor Piyush Kanti Khatua is currently working as principal, Bhatter College, Paschim Medinipur. He was the former professor of Haldia Institute of Technology, as I have already mentioned, for a long 13 years. He completed his BSc Chemistry Honours from Medinipur College and MSc B.Ed PhD from Jadavpur University, Kolkata. He was a scientist at IPIR-TI, Kolkata, Ministry of Environment and Forest, Government of India from 2005 to 2009. He was a scientist, R&D, Arunachal Ply Board under NMBA, Government of India from 2009 to August 2010. Then he joined at the Department of Applied Sciences of Haldia Institute of Technology, India in August 2010 and became an associate professor in 2016 and professor in 2019. He is a life member of Paschim Bongo Bigyan Moncho, Haldia Bigyan Porishad and World Science Congress. He has authored one book from Platinum Publisher, 4 book chapters and more than 50 articles in different national and international journals. He has completed some industrial consultancy projects and some projects are running as a part of Industry Institute Nexus. Sir, the online podium is all yours. Thank you, Nirmala ma'am. Am I audible, ma'am? Yes, sir, you are absolutely audible. Thank you, ma'am, for describing me nicely. Thank you so much. And Our pleasure. okay, can I proceed, ma'am? Yes, sure, sir. Please. Okay. So first of all, I want to thank Dr. Nirmala ma'am for describing me, and I am happy. I feel proud that I was a teacher of our beloved Haldia Institute of Technology, and I served there not only teaching, I was also NSS coordinator there. So I again thankful to our Haldia Institute of Technology for giving me a chance to the newcomer students, and I always love my students, whatever it may be, from my college or others. Student is always students. So I really feel proud and thankful to HIT for giving me a chance, and really thankful to our HOD, Department of Applied Science, Dr. Deepak Kumar Jana. So first of all, I welcome to all students here in HIT, because my body is here. Physically, I am in Bhatter College now, but my heart is always present in HIT, because HIT is an institute not only that it produces some engineer, but some future backbone of our nation. And you have seen in newspaper and in your Facebook also. So we really feel proud of our institute. My dear students, today I will give some proposal to you, and I share my topic here. So students, you have now entered to the
path of engineer, and you will be, after 4 years, you will be everyone, you will be a good engineer. But beside this formal study, you developed yourself such a man, not man. In my word, it will be human. If you learn something from us, means we are teacher, and we know with education we have to follow our mannerism also. One example, Sachin Tendulkar was a inborn genius in cricket, but Sachin Tendulkar could not be Sachin Tendulkar if Ramakant Achrekar was not there. So technically to be sound, technically to be human being, I will give some proposal, and I believe you will get something. And if you digest it in yourself, with your friend, with your family, you will be a complete man in this world, not only by education, by also a human being. Students, famous philosopher Vivekananda say, what is education? He never say your paper, publication, your journal, your job. He say education is the manifestation of the perfection already in man. What is its meaning? Education is the perfection. It is the prakash, meaning exploring of the perfection, completeness of a man. How? Here by a human being. You should cry to your friends when he is in trouble or she is in trouble. You should stretch your hand for those who are victimized, who are orphaned, who needy people. They need education, you will be complete. But in your hostel, if you feel some sorrow for your friends which in trouble, which in some problem, so then you will be a human being. Today, my topic is basic human aspiration. मूल चाहत क्या होता है? बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, मनुष्य का मूल चाहत, हम लोग क्या चाहते हैं, एंड इट्स फुलफिलमेंट, हम लोग उसको मिलता है, हम लोग को वी गेट इट और नॉट, बट हाउ वी गेट इट, व्हाट अमाउंट वी गेट इट, वी विल discuss today. One request to my beloved students, if you listen me carefully, you listened, please you give your full attention to me. Human education sanskar. When we born in our country India, we have some sanskar जो हम लोग मिलता है हमारा फैमिली से. What is this? Politeness. If somebody asks you, senior students, if asks to junior, first year students, from where you came? If junior say, I am coming from Patna, again senior say, where is Patna? Patna, everyone know that. If junior say, you do not know Patna कहाँ पे है, तुम जानते नहीं, हम लोग ऐसे बात नहीं करेंगे सीनियर को. Our Indian culture say, if somebody asks you something, you give answer politely. तुमको कहना है पटना सर बिहार का कैपिटल है, उसका नाम था पहले पाटलिपुत्र. तो आप यहाँ से जाना चाहते हो तो ट्रेन में जा सकते हैं. तो ये है हमारा सीनियर को साथ कैसा बिहेव करना है, पापा मम्मी घर में है कैसे बात करना है, वो है हमारा संस्कार. टीचर क्लासरूम में है कैसे बात करना है, वो है हमारा संस्कार. वो हम लोग सीखते हैं किसका साथ? सीनियर का साथ. और जहां पे हम लोग जाते हैं टीचर का पास, हम लोग ये सीखते हैं बात कैसे करना है, कैसे बिहेव करना है. हॉस्टल में आके, हॉस्टल इज द, क्या होता है हॉस्टल? एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज द टेम्पल. हॉस्टल भी टेम्पल जैसा होता है. वहां पे हम लोग कभी दारू नहीं पिएंगे, कभी सिगरेट नहीं पिएंगे, क्योंकि वहां पे हम पढ़ाई करते हैं. तो ये संस्कार हम लोग को छोटा से मिलता है. हम लोग इसको कभी उसको हमको मान करके चलना है. We should abide that manner in hostel. If somebody say, चलो आज कुछ मजा करें, if
I have some sanskar, I obviously say don't take something here, it is my temple, हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे बाहर जाके. तो this is our sanskar, education and our family give this sanskar. Human world दृष्टिकोण क्या, हम लोग क्या चाहते हैं, वो जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है. नेचर कभी मंदिर में बोला है मंदिर में दारू पियो, मंदिर में बदतमीजी करो. हमारा टेम्पल है, हमारा हॉस्टल, हमारा HIT, हम वहां पे कभी ऐसे बात नहीं करेंगे, ऐसे कभी बिहेव नहीं करेंगे जो हमारा बुराई होता है. और एक है ह्यूमन वैल्यू, मनुष्य को जो मूल्य है, मे बी पुअर मे बी ऑर्फन, उसको भी रेस्पेक्ट देना चाहिए. रेस्पेक्ट देंगे तो रेस्पेक्ट मिलेंगे. दोस्त घर में है, उसका कोई दुख है तो तुमको सहारा देना होगा, तो वो सहारा तुम देंगे तो तुम्हें भी सहारा मिले. तो वैल्यू देना होगा, खुद को रियलाइज करना होगा जो हम क्या कर सके इसके लिए, वो करना है. ये है हमारा ह्यूमन वैल्यू. बट वो करने के लिए हमको स्किलफुल होना चाहिए. हमारा घर में सब देखता है, खेती बाड़ी करता है, कभी जूता भी पहनते नहीं मेरे पापा मम्मी. तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आकर मैं चप्पल सैंडल पहन के आएंगे तो मेरा एटीट्यूड क्या होगा. मुझे धीरे धीरे स्लोली वी शुड बी गुड इंजीनियर, नॉट बाय नॉलेज. हमको क्या करना है ना, बाय बिहेवियर, बाय एटीट्यूड. आई शुड बी गुड इंजीनियर. चप्पल पहन के कभी इंजीनियर नहीं होता है. तुमको शू पहनना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए. स्मार्ट मीन्स तुम्हारा बात, तुम्हारा वॉइस. मैं गांव का लड़का था, जब पहला दिन फोन पकड़ता था, मैं फोन पकड़ के कांप रहे थे हम. तो आज मैं प्रोफेसर बन गया, प्रिंसिपल बन गया, तुम्हारे साथ बात कर रहे फ्रीली. ऐसे आदत करना है बेटा. ये है हमारा स्किल, लिविंग ऑफ स्किल. वो धीरे धीरे आ जाएगा. तो ये है यूनिवर्सल जो सच्चाई है. नेचर जो बोलता है सैर लोग का सब कभी सिगरेट सामने में कभी सिगरेट नहीं पीना चाहिए. वो सैर है, गुरु है. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, व्हाट एवर यू मे बी, बट गुरु का सामने में सर झुकाते हैं हम लोग. मंदिर में जो गर्भगृह में हम लोग प्रवेश करते हैं, उसका द्वार छोटा क्यों करता है ना, वहां पे जो है वो हमारा सबसे बड़ा है. इसलिए तुम जमींदार हो और जमींदार हो और कुछ भी हो, तुमको सर झुकाना है गुरु का सामने. गुरु कैसे है पढ़ाते हैं, कैसा करता है वो बात नहीं. वो he is giving his maximum ability to you, so you should give respect in shop, in front of college, in classroom. Always give respect my dear students. ये आदत होना चाहिए, तब तो हमारा समाज सामने बढ़ेगा. और ये है यूनिवर्सल, चिरंतन, रैशनल. वास्तवता है इसमें, वेरीफाइबली इसका जांचाई योग्यता भी है. हम लोग वेरीफाई किया है. गुरुजन का सामने हम ऐसे बात नहीं करेंगे, ये तो रियल है. लीडिंग टू हार्मोनी, हम गुरु का साथ बात ठीक करेंगे, सीनियर का साथ ठीक से बात करेंगे तो वो हार्मोनी देंगे. सीनियर पूछता है पढ़ना क्या है, हम जब बोला पढ़ना जानता नहीं आप, तो गुस्सा आ जाएगा, कुछ डांटेंगे. ऐसे बोलना नहीं चाहिए. कैसे बोलना है, पटना बिहार का पटलिपुत्र नाम था पहले, अभी कैपिटल बन गया, तो ऐसे बोलना चाहिए. तो वो हमारा संस्कार है, वो नेचुरल एक्सेप्टेंस है. इसके लिए हम लोग को क्या करना है, कुछ स्किल डेवलप करना है. आज हम सीखेंगे बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन. मनुष्य क्या चाहता है, मूल क्या चाहता है, उसका फुलफिलमेंट कैसे होता है, होता कि नहीं. होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे, सामग्रिक विकास, नॉट ओनली एजुकेशन, कंप्लीट एजुकेशन. रोल ऑफ एजुकेशन इन होलिस्टिक डेवलपमेंट. शिक्षा कैसे हमको होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन सामग्रिक विकास करने के लिए हेल्प करे, वो हम आज देखेंगे. स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, तुम लोग जानते हैं सब, मैं जो बोल रहा हूँ तुम लोग भी जानते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं. वी आर नॉट मैन, वी आर ह्यूमन. ये होना चाहिए. एक प्रपोजल है तुम लोग के पास, प्रस्ताव, लेना ना लेना तुम्हारा ऊपर छोड़ दिया. तुम लोग स्टूडेंट हो, सीखेंगे. 4 साल बाद when you will be good engineer, you will be teacher, you will be master in your subject. Whole world is waiting for you. And as a teacher, I feel proud of my students. My chest will be enlarged, not only 36,
it will be more than that. My student is doing something from Chandrayaan 3, have done something from Chandrayaan. So कैसे होता है? Not only by education, God blessing चाहिए. कैसे होता है? अच्छा काम करना चाहिए बेटा. अच्छा काम तुम करेंगे तो वो ऊपर जो ऊपर में है ना, उसका 2 आंख तुम्हारा ऊपर हर टाइम है. एक बात कहूं, एक रामकृष्ण यहाँ पे है हमारा परमहंस रामकृष्ण परमहंस देव, जिसका स्टूडेंट था हमारा स्वामी विवेकानंद. एक दिन रामकृष्ण पूछा गया सब स्टूडेंट को, जो हमारा अच्छा स्टूडेंट होगा उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे. क्या करेंगे ना, घर में किसी को ना जानकारी करके तुम लोग एक मुठा चाल लेके आओ, राइस मींस पैडी लेके आओ. तो सब जब नीच जाते हैं सब स्टूडेंट, घर से राइस लेके गुरु रामकृष्ण का पास लेके आया. पूछा तुम सब ऐसे लेके आए तो कोई देखा नहीं? सब लेके आया था. स्वामी विवेकानंद नहीं लेके आया था, खुद ही आया. तो तुम्हारे पास राइस नहीं है ना? सर सबको फांकी हम नहीं दिया, सब कोई ना कोई देख रहे. वो ऊपर वाला जो 2 आंखें है ना भगवान का, उसको कैसे फांकी देंगे हम? सो तुम कुछ भी करो, ये सोचना चाहिए ऊपर में 2 आंखें हैं, वो हर टाइम तुम्हें देख रहे हैं. कुछ अच्छा काम करे तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा, और बुराई काम का फल तो मिलता ही है साथ साथ. तो ये मेरा प्रपोजल है, लेना ना लेना तुम लोग का ऊपर. स्टूडेंट्स मैं छोड़ देता हूं तुम लोग का. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू वी वांट टू बी हैप्पी? हम लोग सुखी होना चाहते हैं कि नहीं? स्टूडेंट्स योर आंसर विल बी यस, आई वांट टू बी हैप्पी. डू यू वांट टू बी प्रॉस्परस? हम लोग को समृद्धि चाहिए क्या नहीं? हाँ समृद्धि भी चाहिए. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैप्पी एंड प्रॉस्पेरिटी? हैप्पी अंतर से आता है, सोल फील बाय फीलिंग, बट प्रॉस्पेरिटी इज फिजिकल नीड. I have some car, I have some houses, I have huge amount of clothes, shoes. These are prosperity. But happy not depends on prosperity. ये feelings होता है. पापा मामी दोनों नौकरी करता है बड़ा बड़ा, घर में बहुत सारी है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कार भी है, लेकिन लड़का बात नहीं सुनता है. Are they happy? So they are not happy. They have prosperity, but they are happy or not? They are not happy. So do we want to continue of happiness and prosperity? हम लोग क्या चाहते हैं? Prosperity and happiness continuously हम लोग चाहते हैं कि नहीं? Everyone will give answer, yes I want happy and prosperity. दोनों चाहिए हम लोग को. Now question is, we want to be happy. हम लोग सुखी होने के लिए चाहते हैं, लेकिन are we happy? I have told you a story just now. पापा मामी दोनों सर्विसमैन है, बहुत सारी है पैसा, गाड़ी वाड़ी सब है, लेकिन लड़का बात नहीं सुन रहे, उसका दारू पीते हैं, जो वो लोग चाहते हैं वो नहीं हो रहे. They are not happy. So feelings gives us happy is feelings, and prosperity is physical needed. One minute, student. Let us consider what is the difference between animal and our human. Animal, when animal need food, animal become uncomfortable, and we human man, we are also become uncomfortable. जब खाना नहीं मिलता है, भूखा है हम लोग भी अनईजी फील करते हैं. Animal also. But after getting some food, animal forget about that. If you think about lion, it goes to sleep for a long period of time.
If you think about cow, it continuously chewing the cud. So, but we human, we never chewing the cud. We not go to sleep. We have more than 100 walks after getting food. Some people's students are doing their job, officials are doing their office work. So this is the difference. A animal like lion, it does not any idea about what amount of food I need for today. It kills a buffalo of 300 kg weight. It kills. It have no idea what amount needs. Suppose 10 kg, 15 kg, 20 kg, but it kills a 300 kg of buffalo or cow. But we human, we need what food amount we need. 2500 calorie we need, and that is why we take the food. This is the difference between animal and human. We have some idea. We have some whose human means we have some extra from animal. We understand what is our need. Physical facility is necessary for animal and human also, but physical facility is not giving us the happiness. I have told you students, physical facility is not giving us the happiness. हमारे पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, बाड़ी है, लेकिन मेरा लड़का, मेरा लड़की मेरा बात ही नहीं सुन रही, unsocial. I will be happy or not? Your answer will be no, sir. Happiness is coming from harmony. कैसे ना? In family, in society. देखो, घर जाके तुम देखो फैमिली में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम चल रहे, अच्छा कुछ रिजल्ट मिला तुम्हें, तुम देखा कि घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहे, you will be happy or not? No. Your result is good. You want to say your papa, mommy, I have got the good marks. I have got the certificate. But unfortunately, you see, there is a chaos situation in your home. You, na, sister is asking from short clothes or maybe something. But your happiness go in vain. So happiness is something that we feel, and physical facility, whatever it may be, if it is less amount, no problem. But happiness we need for ourselves and our family and our society also. So how much time we give and effort for investing our physical facility, fulfillment of relations. हम लोग घर में जो है, घर में रिलेशनशिप सबका साथ, पापा का साथ कितना टाइम तुम लोग बिताते हो, मामी का साथ, दादा दीदी का साथ, वो देखना है. फिजिकल फैसिलिटी के कितना टाइम देता है और रिलेशनशिप के लिए, तो ये नया संयोजन हुआ रिलेशनशिप, वो अच्छा होना चाहिए फॉर हैप्पीनेस. रिलेशनशिप, our happiness is not to lack of our physical facility. Our happiness is depend on the relationship in family. We need physical facility, but we need relationship with our family. Means giving time, बातें करना है, क्या प्रॉब्लम है, ये खुद का एंड फैमिली का. So students, for human being we need relationship as well as physical facility. Relationship is very important for happiness. Physical facility we need also, animal also need physical facility, but we need
definite amount, because we are educated people, we know what amount of shirt, clothes we need, but animal have no idea. कौवा देखो नंगा बैठा है, डग को देखो नंगा बैठा है, किसी का प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी प्रॉब्लम नहीं है, but we are human being, we know we should wear shirt pant, we should talk in manner, जहां पे जो बोलना चाहिए वो करना है. So we know about our limitation by physical need and biological need, everything. But relationship is very important. Nowadays, we do not think about relationship in family, in hostel, in every society part. That is why we are fighting each other. We oppose, we go to debate with our not only friends, in family also. I should fast in the classroom. You go to fast, but not deprive others. They are your friends above all. Throw your jealousy in the Bay of Bengal near the Haldia Institute of Technology. You are now adult. You have to give something to the nation, society. You make friendship. So relationship is very much important here for your happiness, for your family happiness, for your society happiness. Relationship. My question is, हम लोग सब एक साथ रहना चाहते हैं हार्मोनी का साथ, और अपोज करेंगे, डिबेट करेंगे, हर टाइम झगड़ा करेंगे सबका साथ, कैसे जीना है हम लोग? So my beloved student will ask me, sir, we live in harmony, peace and happiness. So what is the basic and fundamental for happiness? ना relationship. वो अच्छा होना चाहिए, वो तगड़ा होना चाहिए. हॉस्टल में दोस्त कुछ मुसीबत में फंस जाए तो तुमको सोचना क्या हुआ तुम्हारा, सहारा दो उसको. रिलेशनशिप डेवलप करो, नहीं तो उसका प्रॉब्लम वो संभाल लेंगे. ऐसा नहीं, आज तुम उसका सहारा दे रहे हो, एक दिन वो तुम्हारा सहारा देंगे. ये रिलेशनशिप होना चाहिए इन हॉस्टल, इन क्लासरूम, इन योर फैमिली ऑल्सो. So we have to give emphasis on relationship, that if relationship is good, if we understand the problem of family, then it will be give us happiness. So for fulfillment in relationship, it is necessary to have right understanding. A new word you have learned today, right understanding. क्या है वो? ना खुद को देखना होगा, किसी का साथ कोई बुराई हुआ तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं. If I am responsible for this quarreling, so first think yourself and want apology to him. Sorry, I am sorry. इसमें कोई क्षमा सबसे बड़ा गुण है. भूल करे तो क्षमा है. ये बात क्यों है क्षमा? हम लोग क्यों apology चाहते हैं? गलत किया है इसलिए, नहीं तो ईगो से हम नहीं करेंगे. ये करना नहीं चाहिए. तो राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग, तुमका अंदर में सीनियर जूनियर कुछ भी हो वो होना चाहिए. किसी को बुरा बात बोलना तो आसानी से होता है, सोच के देखो वो क्या प्रॉब्लम में फंस गया, तो ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. क्यों वो ऐसे बोला? फ्रॉम योरसेल्फ, फ्रॉम अदर आल्सो. इफ यू फील लाइक, नेताजी सुभाष बोस का नाम सुना है? कोई उसे बोला है you will be the most valuable our freedom fighter? कौन बोला है उसे? तुम जाओ, जाके लड़ो इंग्रेज का साथ. खुद ही सोचा है आई हैव द कैपेबिलिटी. उसका राइट अंडरस्टैंडिंग था उसका ऊपर, खुद का ऊपर. आई डू इट, आई एम केपेबल टू डू द जॉब. वो उसका अंदर में घुस गया था, इसलिए ही उन्होंने किया था. तबीयत ठीक नहीं थी, फिर कहाँ गया? जापान, जर्मनी, सबमरीन से तुम लोग तो सुना है. तो ये आपका अंदर से होना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग फॉर रिलेशनशिप. पहले खुद को समझो. आई शुड अंडरस्टैंड माई सेल्फ.
हम खुद को देखेंगे हमारा कोई गलती हुआ कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है, उसको देखो, सॉल्व करो। दूसरे का हो तो उसको बाद में देखो। तो टू बी ए ह्यूमन बीइंग, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग इन योरसेल्फ, फर्स्ट यू फाइंड इट। फिजिकल नीड तो हम लोग को चाहिए, हमारा 3 पैंट है, इसमें चला जाएंगे। बट राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। मेरा दोस्त खुश नहीं है, तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारा दोस्त कुछ सोच रहे है और तुम पढ़ सकते हो एक ही रूम पे हॉस्टल में? नॉट पॉसिबल। इफ यू आर ह्यूमन बीइंग, यू विल थिंक आई ही इज डूइंग सच टाइप ऑफ अनईजी बिहेवियर, अनलाइक बिहेवियर, सो तुम्हारा पढ़ाई भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो पहले उसको बोलो क्या प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व कर सके हो तो सॉल्व करो। तो राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। राइट अंडरस्टैंडिंग इज माई सेल्फ इज गुड, विथ माई फ्रेंड्स इज गुड, रिलेशनशिप तो अच्छा होंगे, घर में भी होंगे, हम भी खुश रहेंगे। फिजिकल फैसिलिटी एडिक्वेट, एनिमल वो खाना जितना दो वो खाएंगे, तो बोलेंगे नहीं ना इतना नहीं खाएंगे, हमारा इतना नहीं चाहिए, वो खाएंगे फेल के चला जाएंगे। बट वी कैन नॉट यूज सच टाइप ऑफ excess food because we are human being, we have some real understanding about my food, हम कितना खाएंगे इतना ही लेंगे, वेस्टेज मत करेंगे। So we need all the three, right understanding, relationship, physical facility। but पहले क्या चाहिए ना, self understanding, right understanding, that give the bond in relation, in family, in society, in hostel, in nation, and physical facility वो तो चाहिए साइड बाय साइड, कम हो ज्यादा हो कोई बात नहीं, वो सेकंड है। तो इफ वी मार्किंग 1 2 3, राइट अंडरस्टैंडिंग इज फास्ट। हम खुद ही नहीं जानते हम क्या करने वाला, इंजीनियर होगा कि नहीं, पापा मम्मी ने बोला कि तुम इंजीनियर बनो तो बन गया, ऐसे नहीं होता है बेटा। अंदर से हम गुड, आई विल बी गुड इंजीनियर इन द वर्ल्ड, वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। हाँ, रिलेशनशिप के लिए क्या चाहिए ना, फीलिंग्स, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट। दूसरा का ऊपर रेस्पेक्ट होना चाहिए और ट्रस्ट, विश्वास। मेरा बीबी घर में है, मैं 200 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम हर, बट वी हैव सम फेथ टू ईच अदर, ट्रस्ट भी है, इसका ऊपर ही संसार चलता है, विश्वास, तो वो होना चाहिए। तो वो होना चाहिए। तो पहले नंबर 1 इज राइट अंडरस्टैंडिंग, हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, मेरा गलती कहाँ है, वो फीलिंग होना चाहिए। वो फीलिंग्स नहीं तो यू आर नॉट ह्यूमन बीइंग। उसका बाद रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के लिए दोस्त जो रूममेट है उसका ऊपर फेथ होना चाहिए, क्लासमेट का ऊपर फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट भी करना चाहिए। फिजिकल फैसिलिटी जो थर्ड पॉइंट, वो हमारा छोटा हो कम हो, देखो ना कोई एक रूम पे क्यों स्टूडेंट लोग को स्कूल में सेम हमारा वो ड्रेस कोड देता है, क्या बड़ा बड़ा घर का लड़का है, क्या अमीर का, क्या गरीब का लड़का है, सब बराबर होना चाहिए, एक ही ड्रेस है। देखो बड़ा घर का लड़का है, अमीर का लड़का है, बहुत सारी ड्रेस है, तुम पहन नहीं सकते, क्योंकि ये मंदिर में सबका सेम फैसिलिटी, सेम क्वालिटी, वो होना चाहिए। तो फिजिकल फैसिलिटी सेकेंडरी, पहले तो सुख होना चाहिए। आता है कैसे ना, सुख आने के लिए, लाने के लिए हमको चाहिए रियल अंडरस्टैंडिंग, वो उसका बाद रिलेशनशिप मजबूत करना चाहिए। मेरा दोस्त मेरा पर क्यों गुस्सा है, उसको पहले एक्सपेरिमेंट करो, क्यों है, क्यों बहने कुछ बोला है कि नहीं, ये फीलिंग्स आ जाए तो हाँ हाँ मैं तो उसको थोड़ा किताब मांग रहा था, मैंने शायद भी ये हो सकता है, ये फीलिंग्स होना चाहिए बेटा। तो हम लोग राइट अंडरस्टैंडिंग में है, हम क्या है, क्या करने वाला है, मेरा गलती कहाँ है, ये हमको हो जाए। रिलेशनशिप में ट्रस्ट है, फेथ है, दूसरे का क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए। ये हो जाए तो हम लोग म्यूचुअली हैप्पीनेस, आई विल बी हैप्पी, माय कलीग विल बी हैप्पी, ये है, इसको कहते हैं म्यूचुअल हैप्पीनेस। हम हैप्पी है, पाकिस्तान भी हैप्पी है, कैसे हैप्पी होता है, राइट फीलिंग होना चाहिए एक दूसरे का ऊपर।
भारत चंद्रयान भेजा है, वो खुश नहीं हो रहे। क्यों नहीं खुश हो रहे? खुश होना चाहिए, ये होना चाहिए। आज हम लोग फिजिकल फैसिलिटी दोनों को मिल रहे हैं, मींस म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। हमारा कुछ है ज्यादा, अच्छा तुम लो, तो तुम्हारा पास पेन नहीं है और मेरे पास 10 पेन है, मेरा पापा दिए गए हैं, ये है फिजिकल प्रॉस्पेरिटी। ये भी होना चाहिए, बट पहले तो सुख चाहिए। अंदर में मन में सुख नहीं है, इतना बड़ा बड़ा शॉर्ट कोट पहन के क्या है? तो नंबरिंग देंगे तो बेटा राइट अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, देन रिलेशनशिप, देन फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी है, राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप नहीं है, तो हम लोग ह्यूमन बनेंगे? म्यूचुअली हैप्पीनेस आएंगे क्या? योर आंसर विल बी नो एंड नो। तो राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रिलेशनशिप भी हम लोग मजबूत नहीं करना चाहते हैं, तो अनहैप्पीनेस। हॉस्टल में किसी का पापा रुपया नहीं भेज रहे, वो नहीं खा रहे, हम सेकंड साइड में रहते हैं, क्या तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है पूछा ही नहीं, हम खा के चलाया, सो गया। पशु जैसे करता है, देखो एक को मार के खा रहे हैं, दूसरे वहां पे देख रहे हैं, उसका कोई फीलिंग्स ही नहीं है। इसको ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं कहते, ये अनहैप्पीनेस। नॉट ओनली मी, मेकिंग अदर आल्सो अनहैप्पीनेस। सोचना चाहिए, क्योंकि तुम लोग आर स्टूडेंट नहीं, अभी तुम लोग एडल्ट हो गया। A part of our country India, not country India, whole abroad world is waiting for you. सबका साथ, सबका विश्वास करना है। और फिजिकल फैसिलिटी ज्यादा नहीं है तो डिप्राइव, हमारा कुछ है ज्यादा, तुम्हारा नहीं है, वो डिप्राइवेशन होता है। और हमारा साथ राइट अंडरस्टैंडिंग, दोस्त का साथ राइट फीलिंग, हॉस्टल में सबका साथ राइट फीलिंग, तो ये तो फिजिकल फैसिलिटी भी है सबका। म्यूचुअल हैप्पीनेस, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, तो ये होना चाहिए। আমি তো নতুন কোলগেট স্ট্রং টিথ কিনে থাকি। এটা দিয়ে আপনি কি করবেন? আরে এটাই তো পুষ্টি দেয় আমার কাটিং মেশিনকে। কট কট কাটিং করে। এটারই ক্যালসিয়াম বুস্ট দাঁতে যোগায় পুষ্টি, বানায় স্ট্রং। পেস্ট নয়, পুষ্টিও হলো এটা। If we know animal living with animal consciousness, so that is they are in harmony, कोई बात नहीं। But human being living with human consciousness, there is harmony. If you are human, you have right understanding, right feeling, so that is human harmony. But human being with living with animal consciousness, हम किसी को पसंद नहीं कर रहे, दूसरे को बोल रहे उसको लगो उसका पीछे, this is animal life. We are human but living with animal consciousness. ये करना नहीं चाहिए। दोस्त का खाना नहीं है, हमको जितना भी है उसको शेयर करना चाहिए। क्या दुख है वो भी शेयर करना चाहिए। If we do not share it, we are living in human being but living with animal consciousness. ये होना नहीं चाहिए, because we are the future backbone of our Indian nation. हमारे इंजीनियर ऐसे नहीं बढ़ेंगे खाली इंजीनियर होंगे, बट दे शुड गुड ह्यूमन विथ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। यही ही हमारा आज का बात का मूल बात क्या है ना, हैप्पी होना चाहिए, दूसरे को हैप्पी करना चाहिए, उसका पीछे क्या है राज ना, मुझे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, दूसरे को अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप मजबूत करना है। स्टूडेंट्स तुम लोग जानते नहीं, द फूड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड, how many times? 7 times what we need. You know, the total population in the world is 700 crore. For the 700 crore, what amount of food needed? World produced 6 times more than that. Now your question will be, sir, 6 times more than what we need in the world? Yes. Yet we are suffering from
hungry. Why? पीछे वही 3 बात है, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग, रिलेशनशिप। एक बार सोच के देखो, कोई मंत्री का लड़का का शादी हो रहे, लड़की का खाना कितना का है, प्राइस का 10,000. It is necessary or not? What amount of calorie we need? Only 2,000 to 200, 2,500 calorie. But their calorie is more than lakh. इलिस, कोरमा, मटन, चिकन बहुत सारी है। खाना कितना खाएंगे? सब देखो साइड में हम लोग फेंक के चला गया। तो ये फीलिंग्स हम लोग का नहीं है, हम कितना खाएंगे। खाना अच्छा बनाओ, कोई बात नहीं, डिलीशियस फूड होना चाहिए, बट what amount we should not waste because people are waiting for that food. धरित्री माँ ने कितना खाना दिया ना, 6 times more than what we need, yet we are suffering from starving and hungry. This is the main drawback of real understanding and real feeling, my dear student. हमारा पास बहुत सारी है, दया नहीं, कृपा नहीं करना चाहिए, विथ लव। दोस्त दुख मिला तो तुम कुछ उसको सहारा दो। कॉलेज में एक टीचर है राजीव दुबे, जहां पे कोई भी मुसीबत में फंस जाए, राजीव दुबे है मीन्स उसका कोई सहारा मिलता है। ही इज ए मैन विथ अ हार्ट। हम कभी भी मुसीबत में फंस गया, दुबे आके अरे सोचो मत, हो जाएगा। यही होना चाहिए सब स्टूडेंट का। डोंट वरी, देयर मस्ट बी सम वे। डेल कार्नेगी कहा, मुसीबत में फंस जाओ तो रो मत, वे ढूंढो, रियलाइजेशन करो, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तुम लोग ये सोचेंगे क्यों हम लोग ज्यादा खाना लेंगे, वेस्ट क्यों करेंगे। तो हैव वी अंडरस्टूड राइट यूटिलाइजेशन? राइट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहे। कुछ खाना हर डे हम लोग वेस्टेज कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज प्रोडक्शन? नो, प्रोडक्शन इज ज्यादा है। इट इज क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, it is question of relationship, understanding. The last will give you the answer. Yes sir, it is the question of right understanding. हम लोग का यही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमको कितना कैलोरी का खाना चाहिए। खाने का बाद क्या प्रॉब्लम हुआ? खाने का बाद प्रॉब्लम हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ खाने का बाद? किसी का हॉस्पिटलाइज्ड, ज्यादा खा रहे, मटन, चिकन, कर्मा सब एक साथ। ये होना नहीं चाहिए। होना चाहिए राइट अंडरस्टैंडिंग। और एक बात कहूं बेटा, फिजिकल फैसिलिटी कभी सुख नहीं देता है, हार्मोनी नहीं देता है। कैसे? हम एक बोल रहे, घर में एसी आया, एक एसी पापा लेके आया, सब खुश है, आज एसी लगा देंगे। एक कमरा में दादा दादी माँ रहते हैं, एक कमरा में पापा मामी, और एक कमरा में तुम और भाई। एसी तो आ गया, सब खुश, एसी आ रहे, इसका घर में लगाएंगे। सपोज पापा मामी उसका घर में लगा। देखो पहले हम लोग खुशी था, अभी दादा दादी सोच रहे हैं हम लोग बुढ़ा हो गए, इसलिए हम हमारा घर में नहीं दिया। तुम लोग सोच रहे हो मेरा घर में नहीं है, पापा मामी का घर में। तो देखो पहले जो हैप्पीनेस था, अभी वो देखो क्या हम लोग सोच रहे हैं। फिजिकल फैसिलिटी में हैप्पी कभी नहीं होता है हम लोग, वो अंदर से होता है, अंतर से होता है। फीलिंग्स कैसे? टीवी आ गया घर में, पहला दिन देखो घर में, अभी प्रॉब्लम क्या है? सब खुश है। दादी माँ कह रहे मैं ये देखेंगे, सीरियल देखेंगे, पापा कह रहे मैं खेल देखेंगे, मामी कह रहे मैं सिनेमा देखेंगे। देखो लग गया घर में, हार्मोनी गया। तो फिजिकल फैसिलिटी का भी हार्मोनी नहीं देता, हार्मोनी अंदर से होता है, राइट फीलिंग। हम खाना नहीं वेस्टेज करेंगे, हम सबका साथ मिलजुल के रहेंगे, सबका साथ। और HOD ने कहा ना क्या, जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वही। तो हमारा क्या प्रॉब्लम है? ना राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रिलेशनशिप भी हम लोग मजबूत नहीं करना चाहते हैं। फिजिकल फैसिलिटी है बट वो भी ज्यादा नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे। फिजिकल फैसिलिटी ज्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं, बट हम लोग को उत्तरण करना होगा यहाँ से। जो राइट अंडरस्टैंडिंग आज तक नहीं था वो हम ठीक करेंगे। हम क्या करने वाला है? आई शुड बी द बेस्ट इंजीनियर इन माई कॉलेज,
I should be the best human being in my college, in my family. खुद को चेंज करना होगा by attitude, by behavior. देखो ना, हम लोग कोशिश करें तो खुद एक एक करके करेंगे तो गोटा समाज हो जाएगा, नेशन भी विल बी हैप्पी। तो ये ऑल थ्री हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे कुछ किसी को मारने का बाद, कोई जंतु जानवर को मार दिया, उसका बाद ठाकुर पंडित मसाई कहते हैं कि इसका प्रायश्चित्त करना है। प्रायश्चित्त मीन्स पूजा करो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, खाली इम्प्लीमेंट करना है खुद को। क्या? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग। हमको राइट फीलिंग होना चाहिए। किसी को दुख दिया है, अरे इसका पीछे तो मेरा ही हाथ हो सकता है, एक बार सोच लो, माफी मांग लो, सॉरी मैंने ये गलती किया है तुम्हारा साथ। एक बार करके देखो ना, कितना मजा आता है। तो ये राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग होना चाहिए। खाना हम भी जैसे खाएंगे, मेरा पास जो रहेंगे उसको ज्यादा नहीं देंगे, कुछ तो हम लोग दे सकते हैं। तो राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग, खूब अर्जेंट एक तो ये होना चाहिए बेटा। तो हम लोग ह्यूमन बनेंगे। नहीं तो मैन होके बात के क्या फायदा है? ह्यूमन होना चाहिए, मेरा होश होना चाहिए, मेरा ये कंसेप्ट होना चाहिए कि आई कैन डू इट, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। A large world is waiting for you. You all men are not like you. If you understand yourself, विवेकानंद ने कहा दूसरे को ठीक करना मेरा काम नहीं है, मैं खुद को ठीक कर सकते हैं। कितना आदमी को आप ठीक करेंगे? खुद को ठीक करो, अपने को चेंज योरसेल्फ, होल सिस्टम विल बी चेंज। तो हम लोग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रिलेशनशिप मजबूत करना चाहिए, और फिजिकल फैसिलिटी कुछ भी हो हम उसको लेके ही चलना है। तो ये राइट अंडरस्टैंडिंग, ये फीलिंग के लिए हम लोग कितना टाइम देता है, सोचो एक बार। कुछ टाइम हम लोग नहीं देता है। दूसरे गिर गया रास्ता में, हम लोग भाग जा रहे हैं सिनेमा देखने के लिए। सोचना चाहिए सिनेमा तो और एक दिन हो सकता है, लेकिन ये आदमी बांचे कि ना बांचे, एक बार तो कोशिश करके देखो, हॉस्पिटल लेके जाके उसको लाइव मिल जाते तो एक बार यू विल बी द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। हम कुछ आज बड़ा काम किया है, ये होना चाहिए। तो ये संस्कार हमको ये दिया है, एडुकेशन हमारा। आज स्कूल में बच्चा जाता है, देखो उस लोग को हम लोग ये फीलिंग्स देता है राइट अंडरस्टैंडिंग का। आपका खाना वो खुद ही खा रहे, साइड में कोई भूखा है तो हम लोग ये नहीं नॉलेज दे रहे, कोई भूखा है तो थोड़ा सा टीचर को बोलो उसको शेयर करने के लिए कि नहीं। हम ऐसा नहीं कोई बोल रहे, कोई अच्छा स्कूल में सबका खाना मम्मी देता है। हम जब गांव में बढ़ता है, किसी किसी का पास खाना नहीं होता है, तो शेयर भी कर सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग ये होना चाहिए। छोटा से जब स्टूडेंट है वो भी नहीं है। फैमिली में कितना टाइम तुम पापा मम्मी का साथ बात करते हो हर रोज? सब स्टूडेंट सैटरडे संडे है, HIT में छुट्टी है, छुट्टी फ्राइडे घर जा रहे। मैंने कहा फ्राइडे घर चला जाएंगे तो पढ़ेंगे कब? 1 महीने का बाद तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा ना सर, पापा मम्मी घर में है। पापा मम्मी को जब बुढ़ा होंगे तब देखना चाहिए, आप अभी नहीं, अभी पढ़ते रहो। ये फीलिंग्स होना चाहिए। पापा मम्मी के साथ बात करो हर डे, उन लोग को बुलाओ आने के लिए, आ जाओ अब लोग, मैं जाएंगे तो मेरा पढ़ा बर्बाद हो जाएंगे। 2 दिन किताब लेके कितना किताब लेके जाएंगे? तो ऐसे करना चाहिए। जब वो लोग बुढ़ा होंगे तब आपको उसको पास जाना होगा, सहारा देना होगा, आपका काछ रखना होगा, नजदीक में रखना होगा, क्योंकि दे आर लिविंग लीजेंड गॉड टू अस, आवर पेरेंट्स। तो हम लोग वो नहीं कर रहे, पापा मम्मी का साथ टाइम ही नहीं दे रहे, फेसबुक एंड व्हाट्सएप में टाइम ज्यादा दे रहे, वो लोग का साथ बात करने का टाइम ही नहीं है। फोन करे तो गुस्सा आ जाता है हम लोग का। ये होना नहीं चाहिए बेटा। We want to be human being। कोई सोच रहे सर क्या बकवास बन रहे, एक बार पापा बनो, एक बार पापा बनो, तब समझ में आ जाएगा क्या वो लोग चाहते हैं। हर पापा मम्मी सोचता है मेरा लड़का दुनिया से सबसे बड़ा सुंदर है, सबसे अच्छा लड़का है। फोन कर रहे मीन्स कैसे है वो? हर डे फोन करना, रिलेशनशिप मजबूत करना फैमिली में। मामा पापा दे आर वेटिंग फॉर यू, योर स्वीट melody tone when enter in their ear, they are happy too much। हाँ आज तो बात की है मेरा बेटा मेरा साथ, दोनों कितना खुश होता है।
और तुम लोग यहाँ पे चिल्ला रहे हो मेरा तो इतना बड़ा मोबाइल चाहिए, पापा खेती बाड़ी करता है, उतना इसका पास इतना पैसा नहीं है, तुमको जल्दी ये मोबाइल दे। तुमको रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेरा पापा देने वाला कि नहीं, वो सोचना चाहिए। लेकिन ना सोच के पापा ये तो HIT में ये चाहिए, लैपटॉप चाहिए, वो चाहिए। पापा खेती बाड़ी करता है। रात में मम्मी उठ के बोल रहे अरे बेटा तो ये चाह रहे, पापा बोले कैसे देंगे, ना दे कि कुछ तो करो, देंगे कहां से, नहीं नहीं तो मैं तो कुछ भी कर लेंगे। क्या है, एक बार सोचता है पापा मम्मी कितना परेशानी है तुम्हारा एक ही वजह से, सोचना होगा बेटा खुद को। मेरा पापा देने वाला अभी नहीं है, बट हम रिक्वेस्ट करते हैं पापा कभी टाइम हो तो जितना जल्दी आप चाहे तो मुझे दे सकते हैं, कोशिश करो पापा। ये तो मुझे लगेगा कि मैं इंजीनियर हूँ, मुझे एक लैपटॉप चाहिए, मुझे अच्छा एक मोबाइल चाहिए, ऑनलाइन क्लास पीजू सेल ले रहे, ये सोचना चाहिए। पापा को टाइम दो, दे विल बी हैप्पी। हाँ वो तो बोला है हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बचा के हम लोग खरीद करेंगे। बेटा ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक बार करके देखो ना, वो लोग का दुख शेयर करके कितना मजा आता है। फिजिकल फैसिलिटी तो चाहिए, पूजा का समय एक तो अच्छा होना चाहिए, नहीं दे पा रहे तो खुश होना चाहिए। ठीक है पापा जब तुमको टाइम होगा तब तुम मुझे दे देना, कुछ तो है तुम्हारा पास। मन में वो लोग भी खुश, वो लोग खुश। एक बार देखो ना कैसे तुमको खुश आता है, एक बार शेयर करके देखो। तो ह्यूमन एजुकेशन क्या सीखा है ना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। हम अंदर से कुछ सीखे, हम अंदर से रियलाइज करें मेरा पापा काबिल नहीं है इसको देने का, देंगे कुछ देर बाद, 6 महीना बाद, कोई बात नहीं। हम दोस्त का लोग सहारा लेंगे, लाइब्रेरी में चला जाएंगे। हमारा खुद लैपटॉप नहीं है तो क्या है, लाइब्रेरी में सर लोग कंप्यूटर कॉलेज का है, लाइब्रेरी में जाके। तो वो कॉन्शियसनेस होना चाहिए, अपने को दूसरे को वैल्यू देना चाहिए। चिल्ला चरमा के कुछ नहीं होगा। You have to understand yourself, right feeling, right understanding, value of human। तुम कुछ भी कर सकते हो, भगवान 2 हाथ पांव सबको दिया है, ब्रेन ऐसा कुछ ज्यादा नहीं दिया है। तुम भी ध्यान दो, यू विल बी ए ग्रेट इंजीनियर इन द वर्ल्ड। पहला दिन से टेक ओथ, आई विल बी द बेस्ट इंजीनियर इन द वर्ल्ड। मोबाइल में ये वो सर्च नहीं करके क्या है PCC RCC, इफ यू आर सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर का क्या है वो सर्च करो, नॉलेज बढ़ाओ, सैलों का साथ शेयर करो, तब तो होगा। ह्यूमन कंडक्ट, मनुष्य का साथ कैसे बिहेवियर करना है, सर लोग का साथ हम कभी बदतमीजी नहीं कर सकते, दे आर आवर गुरु। तो कहां पे कैसे बिहेव करना है वो भी सीखना चाहिए। दोस्त का साथ कैसे बिहेव करना है, सर लोग का सामने दोस्त का साथ कैसे बिहेव करना है, हॉस्टल में कैसे बिहेव करना है, सर लोग आ जाए तो ये भी सीखना है। तब तो सोसाइटी में तुम यू आर केपेबल टू काबिल इन द सोसाइटी। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मोनी, क्या हार्मोनी इन ह्यूमन बीइंग। हमारा हार्मोनी है तो मन में जैसे हम खुश है, हम लड़का को आज बात कुछ सुनाया जो मुझे पता है, जिस सबका साथ मुझे शेयर करना है मेरा नॉलेज। हार्मोनी इन फैमिली, घर का साथ समय देना, हॉस्टल में दोस्त का साथ समय देना चाहिए, कॉलेज में कोई मुसीबत में फंस जाए तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए सालों का साथ। सोसाइटी, यू विल बी ए मैन फॉर सोसाइटी। हम अकेला नहीं, हम आमी बोल के, आई एम बोल के कुछ नहीं है। मेरा घर में एक कार है, मैं जब घर से बाहर गया तो लाखों कार, उससे ज्यादा दामी लाखों कार घूमता है मार्केट में। तुम जब घर से निकल रहे हो तब पड़ोसी देख रहे, तुम्हारा पास एक कार है। जब रास्ते रोड में रन कर रहे हो, उससे ज्यादा बेहतर और कॉस्टली कार भी रास्ते में घूम रहे, तुम्हारा कार क्या है कोई नहीं देख रहे। तो वो होना चाहिए हार्मोनी इन सोसाइटी, हार्मोनी इन नेचर। ये है नेचर एक्सेप्टेंस। If you do it yourself in this way, you will be the happiest person in the world. Your family will be happy. Society will be happy. Society happy means our mother world will also, nature also will happy. So mutual happiness, mutual prosperity हम लोग को चाहिए। That so we need right understanding, right feeling, justification और justice in relationship। क्या मेरा घर में मामी क्या मांग रहे हैं मुझे देखना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप मजबूत करना है और क्या चाहिए ना,
फिजिकल फैसिलिटी तो चाहिए ही, बट देखना होगा हमारा कितना अवेलेबिलिटी वो लोग दे पाएंगे और नॉट, capable or not. Through mutually we are happy, not only in myself, in hostel, in family, in the world we are happy. So what we have learned today, harmony in human being, खुद को harmony, self understanding, self realization, harmony in family, जो 4 part of the nature, so harmony in society and harmony in nature or existence, that is the उत्तरण. जब हो जाएगा, you will be the happiest person in the world. ये देखना चाहिए हमारा पास रुपया है कि नहीं, रुपया ज्यादा है कि नहीं, और वो बात नहीं है, हार्मोनी है कि नहीं वो देखना चाहिए. तो we need continuous happy and prosperity. It is my proposal to all of you. This is the natural acceptance. सबको सुखी रखना चाहिए, हम भी खुशी होंगे, सबको भी खुशी रखेंगे, ये है नेचुरल एक्सेप्टेंस. एक बार सोच के देखो और एक बार दोस्त का साथ शेयर करके देखो. Diwali with me, Diwali.